Good afternoon, my dear students. Today we will read about use of tenses. Before we start, present, past and future. Tense. I want to tell my students how is am, are simply used in our sentences. When we are talking about tenses, we are talking about the action done in present, done in past, and done in perfect tense. But sometimes we have to use is, am, are just to tell about the things, just to tell about the nouns, just to tell about the places. We simply use is, am, are in present form. When we tell the things, when we tell the places, when we tell the nouns in the present form, then we are using is, am, and are. Here, what things we have to remember, where we have to put is, where to put am, and where to put are. These are the things which are confusing even to the students who are in senior and senior secondary classes also. And as my students are not familiar with use of tenses, because it is our fourth part of English conversation series, and I'm here telling you about that one use, how we are using is, am, and are. You can have a glance. Suppose I say a single line, Ram is a boy. It means Ram is present there. I'm telling Ram is a boy. Here I am telling only about the Ram, but I am not discussing about the action of the Ram. When I will discuss about the action, then I will be talking about present, past and future. Here action has not been described here, only what type of noun it is, what qualities of the nouns here are. We are dealing with noun or its adjective form. But we have to be very much clear that where we have to use is. Is the singular form, are is the plural form, am is also singular form. But here we have to again keep in our mind personal pronouns. I, we, you, they, he, she, it, etc. When we are talking about he, she, it, here we are applying is. When we are talking about I, we are talking about am part. And when we are applying are, we are applying for the plural form of the sentence. These things should be very much clear in our mind if we are proceeding this part of our tenses use of is, am, are. Ram is a boy. राम एक लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है. आपने देखा हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अप्लाई किया. इस एम आर हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि हमारी प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करते हैं. प्रेजेंट फॉर्म में हम इसका प्रयोग में लाया जाता है. लेकिन आपने क्या देखा, इसी इस एम आर को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक्शन होता है. इधर इस एम आर में आपको एक्शन डिस्क्राइब नहीं करना, आपने केवल संज्ञा के बारे में बताना है या संज्ञा की विशेषता को प्रकट करना है. राम एक बालक है, राम एक अच्छा बालक है. इसमें क्रिया तो दी हुई है कि वो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं हम, लेकिन वास्तविक रूप से हमने कहीं भी यहाँ पर किसी भी क्रिया का एक्शन का इस्तेमाल नहीं किया. हमने ये नहीं बताया कि राम क्या करता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, भागता है, स्कूल का काम करता है, यानी कि एक्शन हैज़ नॉट बीन डिस्क्राइब्ड हियर. वी आर टॉकिंग ओनली the things
In whatsoever position the things are present over there, either they are noun, either they are pronouns, either they are places, either they are things. So we have to keep these things in our mind and in a very clear way. There should not be any type of doubt while using is, am, are. अब जैसे हम is, am, are का यूज़ करते हैं, ऐसे ही हम was, were का भी यूज़ करते हैं. जब उसी चीज़ों को हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, तो पास्ट टेंस में यूज़ करने के लिए इस, एम, आर की जगह वाज, वर का, यदि सिंगुलर होगा हम वाज लगाएंगे और यदि प्लूरल होगा तो वहाँ पर वर लगाएंगे. अशोका एक दयालु राजा था. अशोका वाज ए वेरी काइंड किंग. तो हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं, ना कि प्रेजेंट के बारे में. अब जैसे हम इस, एम, आर का एक्शन के बिना प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे ही हम वाजवर का भी एक्शन के बिना प्रयोग में लाया जा सकता है इसको. और इसी तरह से हम हैज़, हैव, हैड को बिना एक्शन के भी प्रयोग में ला सकते हैं. राम के पास एक कार है. राम के पास एक गाड़ी है. राम के पास कुछ खिलौने हैं. राम हैज़ ए कार. यहाँ हमने केवल ये ध्यान रखना है, आई, वी के साथ हमने हैव लगाना है, दे के साथ भी हमने हैव लगाना है. आई सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर हमेशा हम प्लूरल के रूल अप्लाई करते हैं, इसलिए हम आई के साथ भी हैव लगाते हैं, वी के साथ भी हैव लगाते हैं, यू के साथ भी हैव लगाते हैं और दे के साथ भी हैव. बाकी सबके साथ हम हैज़ लगाते हैं. यहाँ एक फ़र्क हमने याद रखना है. यदि हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं तो हमने इसको इस, एम, आर के पैटर्न के ऊपर लेके आना है, क्योंकि हैज़ और हैव जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बताता है. लेकिन जब हम यूज़ करेंगे तो हम हमेशा ये कहते हैं यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड. लेकिन फ़र्क है, हैज़ और हैव जहाँ हमारी प्रेजेंट अवस्था को बताते हैं, वर्तमान अवस्था के बारे में बताते हैं, और जो हैड है वो हमारी पास्ट कंडीशन के बारे में बताता है. लेकिन जब हम पास्ट कंडीशन के बारे में बताएंगे तो पास्ट कंडीशन जो है उसमें हम सभी जितने भी प्रोनाउन हैं उनके साथ हैड लगाएंगे. आपने तीनों का आज प्रयोग मैंने इकट्ठा आपको बताया है. आपने कहीं भी इसमें पजल नहीं होना. मैंने इसलिए बताया इकट्ठा क्योंकि इस, एम, आर भी यदि हमारी प्रेजेंट अवस्था को बताते हैं तो हैज़, हैव भी हमारी प्रेजेंट कंडीशन को बताते हैं. यदि वाज, वर हमारी पास्ट कंडीशन के बारे में बताता है, पास्ट अवस्था के बारे में बताता है, तो इसी तरह हैड भी हमारी पास्ट अवस्था में बताता है. इसलिए मैंने तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सामने रखा है. यूज़ ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड. यहाँ क्या ध्यान रखना है आपने, जितने भी आपने सेंटेंसेस की फॉर्मेशन की, कहीं पर इसमें मेन वर्ब नहीं लगाया, हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हम ऑलरेडी बता रहे हैं कि वी आर यूजिंग इज, एम, आर. इज, एम, आर हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, प्रेजेंट कंडीशन के बताते हैं. वाज, वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंडीशन के बारे में बताते हैं. हैज़, हैव, हैड में वेरिएशन, हैज़, हैव प्रेजेंट अवस्था के, जबकि हैड हमारी पास्ट अवस्था के बारे में बताता है. यहाँ क्या आपने ध्यान रखना है, हमने प्रोनाउन के साथ कैसे इस, एम, आर का प्रयोग करना है, प्रोनाउन के साथ कैसे वाज, वर लगाने हैं, प्रोनाउन के साथ कैसे हैज़, हैव, हैड लगाना है. अब जब हम हैज़ और हैव की बात करते हैं, इस, एम, आर हमारा क्लियर है. मैं एक राजा हूँ, वह एक राजा है, ठीक है, तुम एक राजा हो. तो हमने एक प्रेजेंट अवस्था के बारे में बताया. अशोका वाज ए किंग. अशोक की हमने पास्ट अवस्था के बारे में बताया. अशोका वाज ए किंग. दे वर वेरी हैप्पी. अब हैप्पी हम जब लगाएंगे तो वर्ब बन जाएगा, तो इसको हम इस क्लास में नहीं रख सकते. वाज, वर, देयर वाज ए क्रो. द क्रो वाज वेरी थ्रस्टी.
वो हमारा वर्ब हो जाएगा। लेकिन जब तक हम क्रो के बारे में बताते हैं, यदि क्रो के कलर के बारे में बताते, क्रो के ही बारे में यदि हम बातचीत करते हैं केवल, तो हम केवल इस पार्ट की ओर, इस एमआर पार्ट की ओर जा रहे होते हैं। तो हमेशा याद रखिए, इस एमआर को जैसे हमने प्रेजेंट में यूज़ करना है, ऐसे ही वाज वर्ब को पास्ट में। अब हैज़ हैव हैड में हमने क्या पोजेशंस में बताना होता है चीज़ों को। मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव ए कार। उनके पास एक कार है, दे हैव ए कार। तो यहाँ हमने बताया कि वस्तु तो है, लेकिन वस्तु किसी ना किसी के पोजेशन में है, नाउन के पोजेशन में है। जब हम किसी गाड़ी के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी बस के बारे में बात करते हैं, हम किसी भी व्हीकल के बारे में बताते हैं, तो हम यही कहते हैं ना, इट इज़ ए कार। और यदि कार की वर्ब के बारे में बताएं, इट रन्स, कार अपने आप नहीं दौड़ती, इसको चलाने के लिए नाउन की आवश्यकता होती है। और नाउन तभी काम करता है और जब उसका एक्शन डिनोटिंग अवस्था में होता है। एक्शन डिनोटेड बाय सम एक्शंस, डिनोटेड बाय सम डीड्स, डिनोटेड बाय सम वर्क, जब हम कोई काम करते हैं तो। अब कार खुद काम नहीं करती, कार के ऊपर काम लिया जाता है। ऐसे ही हमारी जितनी भी हम वस्तुओं को प्रयोग में लाते हैं, उनको भी हम कंडीशन के रूप में देखते हैं और कंडीशन के रूप में ही अप्लाई करते हैं। अब हैज़ हैव जब हमने प्रयोग में लाया, हमने ये बताया कि ये प्रेजेंट अवस्था में है, राम हैज़ ए कार। अब जब हमको पुरानी बात बताते हैं कि जब राम छोटा था तो उनके पास एक गाड़ी थी, व्हेन राम वाज, पास्ट में हम चीज़ों को यहाँ बता रहे हैं। तो पास्ट में जब भी हम बताएंगे तो अब हमने पास्ट टेंस ही यूज़ करना है और यहाँ पर हमने हैड अप्लाई किया। तो जब हमने हमारे पास कोई चीज़ है वर्तमान अवस्था में, हम हैज़ हैव को प्रयोग में लाएंगे। जब वही जो अवस्था होगी पास्ट में होगी, तब हम हैड को प्रयोग में लाएंगे। अब हमने अक्सर हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो हर जगह पर डू डज इज एम आर लगाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ मैंने एक बार बता दिया आपको कि हमने इस एम आर तब लगाना है जब वाक्य में संज्ञा दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन एक्शन जो है वो मिसिंग है। एक्शन मिसिंग होने के कारण, लेकिन वर्तमान अवस्था में एक्शन को बताया गया है, तो यहाँ हम सिंपली इस एम आर का यूज़ करेंगे। दूसरी बार, कई बार बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं उनको इतना पता होना चाहिए कि जब हमने इज एम आर अप्लाई करना है तो हमने केवल प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना है और कहीं भी जगह पर हम इस, जब हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तब तो हमने कभी भी यूज़ नहीं करना है। जब हम एक्टिव टू पैसिवाइज बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के, वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, लेकिन हम वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं, हम टेंसेस की बात नहीं कर रहे। यदि हम टेंसेस की बात करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना है इस एम आर दो ही कंडीशन में लगाया जा सकता है। यहाँ तो तब लगाया जाता है जब मेन वर्ब मिसिंग होता है और कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, तो हम इज एम आर का सिंपल प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम एक्शन में लेकर आएंगे तब उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में, राम इज़ डूइंग दिस एंड वर्क, राम इज़ नॉकिंग एट द डोर, तब हमने एक्शन बतानी है और वहाँ हमने इस एम आर अप्लाई किया है। और बाकी जितने भी 12 के 12 टेंसेस आप देखते हो, कहीं पर भी हमने इस एम आर नहीं लगाना है। तो हम, मेरे को ऐसा लगेगा कि अब मेरे बच्चे कभी भी इस बात की गलती नहीं करेंगे कि हमने इस एम आर कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना है। मुझे लगता है कि आप थोड़े थोड़े सेंटेंसेस बनाएंगे इसके ऊपर में। राम एक राजा है, ठीक है, तो राम एक राजा था, ठीक है, राम के पास इतना बड़ा महल था, तो हमने ये हैड में यूज़ इसको करना है। तो राम के पास अभी महल है यदि हम बात करते हैं, तब हम हैज़ और हैव की बात करते हैं। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस जब आप खुद फॉर्मेट में लाओगे तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ें जो हैं वो अपने आप ही क्लियर होती जाएंगी। तो मुझे लगता है आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस एम आर का यूज़ अच्छी तरह आ गया होगा। और
मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ऐसे ही इस वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। आने वाले वीडियो में हम टेंसेस के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। तब तक गुड बाय।